آج عمران خان نیب اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ انہیں 80% یقین ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے انہوں نے اپنے کارکنوں کو اہم ترین پیغام بھی دیا۔ اور آج کے ویلاگ میں ہم وہ شامل کریں گے کہ آخر دنگے فساد کے لیے یا آرمی تنصیبات پر حملوں کے لیے یا عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر آخر 9 مئی کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنے ویلاگ میں شامل کریں گے کہ عمران خان نے اپنی تمام تر توبوں کا رخ کر دیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آسم منیر کی طرف۔ عمران خان کے کتنے روپ ہیں، ان کے کتنے رنگ ہیں، کتنے روپ ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ گجنی بن گیا ہے، اور ان کا میموری، شارٹ ٹرم میموری لاس جو ہوتا ہے نا، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اب عمران خان ایکوریٹ وہی ہو گیا، ان کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کل کیا کہا تھا، صبح کیا کہا تھا، اب کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ظلم خلیل زاد کی تڑپ، ظلم خلیل زاد کی آہ و بکا اور ظلم خلیل زاد کا چیخنا، چلانا، رونا دھونا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ وہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، وہ ہونے جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، کیونکہ ظلم خلیل زاد جیسے جو بکاؤ دلال ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب ان کا سودا خراب ہوتا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی ہم آج کے ویلاگ میں شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج عمران خان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اپنی ضمانت کی توثیق کے لیے پیش ہوں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ اپنی خواہش پر، حتیٰ کہ نیب نے ان کو 22 مئی کو طلب کیا تھا، لیکن وہ اپنی خواہش پر اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ آج نیب میں خود رضاکارانہ طور پر پیش ہوں گے۔ اور اس لیے عمران خان کو یہ اندیشہ ہے کہ بلکہ انہیں 80% یقین ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور اب اگر گرفتار کر بھی لیا جاتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں جس کو شٹ اپ کال دی جانی چاہیے تھی ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے۔ آپ کے جتنے بھی کارکنان ہیں، وہ جو اہم رہنما ہیں، وہ یا تو جیلوں میں بند ہیں یا تو عمران خان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اور اس وقت عمران کی کیفیت اس بچے کی طرح ہے جس کے ریلوے اسٹیشن پر ماں باپ کھو گئے ہوں اور وہ ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہو اور ماں باپ کو بلاتا پھر رہا ہو، لیکن ماں باپ کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے عمران خان اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ عمران خان کے پتہ نہیں کتنے روپ ہیں۔ میں پہلے سمجھتا تھا کہ 2 روپ ہیں، لیکن اب مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے 2 روپ نہیں ہیں، اس کے کئی روپ ہیں۔ یا تو وہ امریکہ کا وہ دوست ہے، امریکہ کا غلام ہے اور امریکہ کا خادم ہے، اور اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے امریکہ کی بھرپور خدمت کی، اور خدمت کی انہوں نے سی پیک کو رول بیک کر کے، اور انہوں نے خدمت کی مقبوضہ کشمیر وہ انڈیا کو دے کر، اور انہوں نے خدمت کی IMF کو سی پیک کے تمام دستاویزات فراہم کر کے، اور شاید مجھے اب یہ بھی شک لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے بھی کوئی انفارمیشن امریکہ کو فراہم نہ کر دی ہو۔ تو بہرحال عمران خان اور امریکہ کے بیچ میں کیا معاملات ہیں، وہ یہ ایک تقریباً 3.5 منٹ کی ویڈیو ہے، ذرا آپ اس کو دیکھ لیں اور پھر آپ خود اندازہ کریں۔ میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے، اسد مجید نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ڈونلڈ نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ۔ Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. ایک سائفر سیکرٹ کنورسیشن لو اور پاکستانی ایمبیسڈر ہوئی، وہ تو بلیک اینڈ وائٹ پہ سب کے پاس اویلیبل تھا۔ تو سائفر پہ تو واضح طور پہ ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ گے تو نہیں تو کانسیکوینسز ہیں۔ There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here.
मैं तो कहता हूँ वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएगा, ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई। मेरे पास ये सबूत है बैरूनी साजिश की, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। So he conspired with the people who are in power right now, and you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. हमें अमेरिका ने बाहर से मुल्क अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now, अमरीकी साजिश के तहत ये हुकूमत हमारे पे मुलव्वस की है। violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. अमरीकी साजिश के तहत कौम इनको कबूल नहीं करेगी। So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxime, when you give a statement. क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxime, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. नाज़रीन, अब आप खुद भी परेशान हो गए होंगे कि ये शख्स है क्या। यानी ये अमेरिका मुखालिफ है, अमेरिका का गुलाम है, यहूदियों का एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है। आखिर ये है कौन? सवाल उठता है कि ये कौन है। कल तक बाजवा 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 बाजवा, आज बाजा का बाजा बजा रहा है, बाजवा का बाजा बजा रहा है। कल तक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ खड़ी है और जो अच्छा सब कुछ, लेकिन मतलब कितने रंग कितने रूप इसके हैं। बहरहाल, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इमरान खान ने अपनी तोबों का रुख जो है वो मुकम्मल तौर पर आर्मी चीफ की तरफ कर दिया है। एक तो उनका झूठ पकड़ा गया, जो गुज़िश्ता रोज़ मैंने जो एक जो है वो वीलॉग रखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें बल्कि अलीम खान की वो ऑडियो भी चलाई थी, जिसमें जो है वो इमरान खान की अहलिया फराह गोगी और उस्मान बुज़दार की करप्शन की दास्तानें छुपी हुई थीं, वो आपने खुद सुन ली थी। तो उसके अलावा अब इमरान खान मतलब आखिर क्यों, यकीनन जाहिर है कि उसको गुस्सा होगा कि जाहिर है सब कुछ उसके हाथ से जा रहा है, तो फिर क्या, यकीनन फिर कुछ भी नहीं। नाज़रीन, में एक और अहम तरीन सवाल है, वो ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी और आर्मी तनसीबात के हवाले से 9 मई का इंतखाब ही क्यों किया गया? आखिर 9 मई को ऐसा क्या था? आखिर क्यों इस तरह किया गया? तो नाज़रीन, वो सारी साजिश इस वक्त खुल चुकी है। ये साजिश जो क्रिएट हुई या जहां इसने जन्म लिया, वो अपने ही जो है वो आर्मी के मुख्तलिफ इदारों में या मुख्तलिफ मकामात पर ये चीज़ हुई, और वहाँ पर इसलिए हुई कि 9 तारीख को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब कतर के दौरे पर थे और उन्होंने समझा कि उनकी अदम मौजूदगी में सारा खेल लें, फिर उनके जहाज़ को उड़ाते रहें और फिर वो उड़ता रहे और नीचे जो है वो साहिर शमशाद साहब या फिर कोई और आर्मी चीफ बन जाए। लेकिन साहिर शमशाद साहब ने जिस तदब्बुर का या जिस फहम फरासत का मुजाहरा किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो ये जो सारी चीज़ हुई थी, इसमें 3 अहम तरीन जर्नल्स मुलविस बताए जाते हैं, बाकी निचले लेवल के कोर कमांडर टाइप के, लेफ्टिनेंट जनरल के, इस टाइप के कुछ लोग हैं, लेकिन हकीकत में कितने हैं ये अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि इस वक्त जो 9 मई का जो सब कुछ किया गया या करवाया गया, इस वक्त इस मसले को हल करने की ज़रूरत ज़्यादा है। और इस हवाले से आपने सुना होगा कि आर्मी कोर्ट्स का भी मामला चल रहा है और बहुत सारे मामला चल रहे हैं। तो बहरहाल अब इमरान खान अब खुद ही ट्रैप हो चुके हैं और इमरान खान का ट्रैप जो है वो उनको कल अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने ये तक कहा है कि मुझे इस चीज़ का भी अंदेशा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जो है वो ज़ल्मे खलीलजाद के जो ट्वीट्स हैं, आज उन्होंने यके बाद दीगरे
5 ट्वीट्स किए हैं और उन 5 ट्वीट्स में उन्होंने जो कुछ कहा है, जो उसकी आहो बका, चीखो पुकार और सब कुछ है, उससे अंदाजा होता है कि कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ होने वाला है। और आज जो नेशनल असेंबली में हुआ वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा था। ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो हैं वो कंटिन्यू जो डेमोक्रेटिक रेड लाइंस हैं उनको वो अबूर कर रहे हैं या उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और अब वो जो है वो डिसाइड कर चुके हैं कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील देकर सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि जो ये अपने आप में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, और जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक गैर आईनी इकदाम है। माफ कीजिएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि जी जो है वो ये जो कुछ हुआ था पहले, ये हुआ था जब जो है वो ये तब हुआ था जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर जो है वो दहशतगर्दों का हमला हुआ था, और 2019 में शायद, और उसके बाद जो है वो 23वीं आईनी तरमीम की गई थी, लेकिन वो जो तरमीम थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब उसका कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए अब जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जा रही हैं ये गैर आईनी हैं। और वैसे तो ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने चल रहा है, आप देख सकते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट को भी जो है वो हदफ बनाया है, लेकिन उन्होंने जो आखिर में कहा है, मैं चाहता हूं कि ज़रा वो आप इंग्लिश में सुने ताकि आपको पता चले। उनका कहना है कि शुड द आर्मी चीफ टेक दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप, it would be yet an additional reasons for why he is not the right person to lead Pakistan's armed forces and play such a sensitive role in this important country's destiny। यानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो अहलियत ही नहीं रखते, यानी वो जो हैं वो नाअहल हैं और आर्म फोर्सेस की जो है वो क़यादत करने के लिए, और ऐसे शख्स के खिलाफ यानी वो जो गैर आईनी इक़दाम कर रहे हैं उसका खात्मा किया जाए, उससे उसको रोका जाए। तो ये ज़ल्मे खलीलजाद और अमेरिकन ब्रेड शर्मैन सेंथिया रिची या रिची सेंथिया, और जो वहाँ पर मुसलमान, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि मुसलमान कांग्रेसमैन जो बेसिकली पाकिस्तानी हैं, ये वो दलाल हैं जो टकों में बिकते हैं। तो ये वहाँ पर टकों में बिक रहे हैं, और जो है वो जमामा गोल्डस्मिथ उनकी वफादारियाँ, उनके ज़मीर, उनके सब कुछ खरीद कर रही है। बिक रहे हैं तो वो भी खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं। ज़ाहिर है कि आप किसी के गले में पटा डालते हैं तो क्यों डालते हैं, या किसी को आप टुकड़ा डालते हैं तो क्यों डालते हैं, ताकि वो भौंकता रहे। तो भाई करो जो करना है। बहरहाल नाज़रीन, जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरह शहीदों और गाजियों को एजाज़ात दिए, उस पर वो एक काबिल तहसीन अमल था। और जिस तरह शोहदा की अपना वालदेन को, शोहदा की माओं को, शोहदा के वालदेन को, बेटियों को, बहनों को सलूट करके और उनको पूरी इज्जत के साथ जो जिस तरह उनको अवार्ड या फिर या जो उनकी जो तकरीम थी वो की गई, या जिस तरह उनकी इज्जत की गई, वो अपने आप में एक मिसाल है। तो बहरहाल हमारी तरफ से भी जाहिर है कि हमारे शोहदा हमारा असासा हैं, हमारी असास हैं, हमारा सरमाया है, हमारे मुल्क की दिफा के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है। तो जो है वो जाहिर है कि हमें उन पर नाज है और रहेगा। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।